So let us solve, students, one of the important exercise, miscellaneous exercise. First question, the mean and variance of 8 observations are 9 and 9.25 respectively. If 6 observations are 6, 7, 10, 12, 12 and 13, find the remaining 2 observations. So let us find here. So what we will do, students, here, let the remaining two observations be a comma. So what is given here? Mean is given, x bar is equal to 9 and variance is equal to 9.25. देखिए बच्चों, mean x bar is equal to summation of xi upon n. Now see here, summation of these 6 plus 7 plus 10 plus 12 plus 12 plus 13 plus a plus b. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8 observations are there. Okay. So 8 observations. And mean, it is given 9. So I can write this here. 9 into 8 means 72 is equal to. So if we add these, इसको अगर हम लोग ऐड करते हैं तो it comes 60. 60 plus a plus b. So this implies a plus b is equal to 72 minus 60, we can write. That is a plus b is equal to 72 आएगा. So let us call this as equation number 1. Now we have seen variance, that is rho square is equal to summation of xi square upon n minus summation of xi upon n whole square. तो देखिए बच्चों, हमारे पास तो ये xi है, xi स्क्वायर, समेशन ऑफ xi स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे हम लोग और दिस इज 9.25 is equal to 6 square, that is 36 plus 49 plus 100 plus 144 plus 144 plus 169 plus a square plus b square upon total observations बच्चों, हमारे कितने ऑब्जर्वेशंस है? टोटल ऑब्जर्वेशंस आर 8 माइनस समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन एन बोले तो ये मीन हो जाएगा बच्चों. दिस इज नथिंग बट मीन है एंड इट इज गिवन दैट इट इज 9. 9 स्क्वायर आएगा, बराबर है. तो देयरफॉर आई कैन राइट हियर, इसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे. 9.25 प्लस 81 इज इक्वल टू, देखिए बच्चों, अगर हम लोग इसको ऐड करते हैं इट विल कम 642 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 8 आएगा ये. ठीक है, इसको अगर ऐड करते हैं बच्चों तो इट विल बी दिस 9.25 plus 81 means 90.25 into 8 is equal to 642 plus a square plus b square. अगर हम लोग इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों तो इट विल कम 722 minus 642 is equal to a square plus b square आएगा.
ठीक है, इसका अगर हम लोग सब्ट्रैक्शन करते हैं बच्चों तो इट कम्स 80 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 80 आ गया। कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ से b की वैल्यू निकाल सकते हैं बच्चों। b इज इक्वल टू 72, ये आएगा, इसमें वैल्यू रखें तो 80 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 72 माइनस ए होल स्क्वायर। फिर भी दिस बच्चों 72 माइनस 60 यहाँ पे 72 नहीं आएगा बच्चों, यहाँ दिस विल बी 12 आएगा। इट विल बी 12 माइनस ये आएगा, ये 72 माइनस 60 इट इज 12, इट इज 12 माइनस ये होल स्क्वायर आएगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 80 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 144 माइनस 24 ये प्लस ये स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो इट विल बी 80 इज इक्वल टू 2a स्क्वायर माइनस 24a प्लस 144। चलिए बच्चे, इसको अगर हम लोग यहाँ पर इसको ऐसे लिखेंगे 2a स्क्वायर माइनस 24a प्लस 144 माइनस 80 करेंगे is equal to 0. So this implies 2a square minus 24a plus 64 is equal to 0. ठीक है, इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं या 2 कॉमन निकालेंगे तो ये स्क्वायर माइनस 12a प्लस 32 इज इक्वल टू 0 है। तो देखिए बच्चों, इसके फैक्टर्स हम लोग निकाल सकते हैं। 32 के ऐसे फैक्टर्स जिसको ऐड करेंगे तो माइनस 12 आएगा, minus 8 minus 4, it will be minus 12. So you can write a minus 12, a minus 4 is equal to 0 आएगा। ठीक है, so this implies a is equal to 12 और a is equal to 4। देखिए बच्चों, a plus b is equal to 12 है तो a is equal to 12 नहीं हो सकता है। ठीक है, so this implies a is equal to 4 और a is equal to 4 मालूम होगा तो we can put here a is equal to 4, we can put here, so b is equal to 12 minus 4, b is equal to 8. So that means our required answer required 2 observations 4, 8 ये आ जाए। Let us solve one more important example बच्चों, सेम एग्जाम्पल है। यहाँ पर क्या दिया है देखिए बच्चों, the mean and variance of 7 observations are 8 and 16 respectively. If the 5 of the observations are 2, 4, 10, 12 and 14, find the remaining 2 observations. So once again we will use the same method. Let a comma b be the 2 remaining observations. ठीक है, तो हमारे ऑब्जर्वेशंस कौन से हो जाएंगे बच्चों, 2, 4, 10, 12, 14, a comma b, 7 ऑब्जर्वेशन। मीन दिया है x बार इज इक्वल टू 8 एंड वेरियंस इज इक्वल टू 16 दिया। ठीक है, तो पहला इक्वेशन हम लोग मीन लेके करेंगे बच्चों। मीन x बार इज इक्वल टू
समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन एन। तो मीन हमारा क्या है बच्चों, दैट इज 8। सो 8 इज इक्वल टू 2 plus 4 plus 10 plus 12 plus 14 plus a plus b अपॉन 7 आएगा बच्चों। 1 2 यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 है 7। तो इट विल बी 8 into 7 इज इक्वल टू, तो इसको अगर हम लोग ऐड करते हैं 16, so it comes 42 plus a plus b, ये 7 इधर ले लिया। So 56 minus 42 is equal to a plus b. तो a plus b is equal to 14, इक्वेशन नंबर 1 बोल सकते हैं हम लोग। ठीक, अब दूसरा क्या है बच्चों, ये कि वेरियंस। वेरियंस का मतलब वेरियंस इज इक्वल टू ए सिग्मा रो स्क्वायर इज इक्वल टू summation of xi square upon n minus summation of xi upon n होल स्क्वायर। तो देखिए बच्चों, हम लोग इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, ये ऑब्जर्वेशन का x1 फिर 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 7 माइनस, ये हमने मीन जस्ट इट इज गिवन, ये मीन दिया है बच्चों 8 दिया है, 8 का स्क्वायर लेना पड़ेगा। और ये जो है वेरिएंस इट इज 16। ठीक है, तो ये क्या आएगा बच्चों, 16 प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे तो इट विल बी 64 इज इक्वल टू 4 प्लस 16 प्लस 100 plus 144 plus 196 plus a square plus b square whole divided by 7। ठीक है, तो देखिए बच्चों 16 प्लस 64 ये 80 आएगा, 80 इंटू ये 7 इधर ले लेना, और हम लोग अगर इसको ऐड कर देते हैं बच्चों, ऐड दिस, इसको ऐड करेंगे तो इट कम्स 460 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी। तो ये 560 माइनस 460 दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। दैट मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें से माइनस करेंगे तो 100 आएगा बच्चों, ये 100। आगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 2 में यहां से देखिए इक्वेशन नंबर 1 से ये इज इक्वल टू 14 माइनस बी कीजिए, या b इज इक्वल टू, b की वैल्यू निकालेंगे, b इज इक्वल टू 14 माइनस ए, कोई बात नहीं, तो ए स्क्वायर प्लस 14 माइनस ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100 है। तो ए स्क्वायर प्लस 196 माइनस 28 ए प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 100 है। देखिए बच्चों ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2 ए स्क्वायर माइनस 28 ए plus 196 minus 100 is equal to 0. So it will be 2a square minus 28a plus 96 is equal to 0 आएगा। अब इसको हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, जो 2 कॉमन है ना,
2 से डिवाइड कीजिए, तो दिस इज ए स्क्वायर माइनस 14a प्लस 48 इज इक्वल टू, अब ये 48 के कोई फैक्टर्स लेना है बच्चों, इट इज -8 माइनस 6 -8 -6, तो कोएफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर टर्म 1 है, तो ये इसके डायरेक्ट फैक्टर्स लिख सकते हैं, ये -8, ये -6 इज इक्वल टू 0, ये इज इक्वल टू 8 और ये इज इक्वल टू 6 है। तो यहां पर देखिए, दिस इंप्लाइज ये इज इक्वल टू 8 है बच्चों, यहां पर अगर हम लोग रखते हैं तो b इज इक्वल टू 6 बोलेंगे, और अगर हम लोग ये इज इक्वल टू 6 है तो b इज इक्वल टू यहां पर रखेंगे तो b इज इक्वल टू 8, so we can say that so this implies required या इसी को बोल सकते required 2 observations given here बच्चों, the mean and standard deviation of 6 observations are 8 and 4, तो mean दिया है, mean of 6 observation is equal to 8 and standard deviation दिया है, standard deviation is equal to 4. If each observation is multiplied by 3, find the new mean and new standard deviation. तो देखिए बच्चों, हमको क्या दिया है, mean of 6 observation. तो let x1, x2, x3, x4, x5 and x6. These are 6 observations. Okay. इसका मीन x क्या आएगा, 6 ऑब्जर्वेशंस का मीन x बार इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 अपॉन 6 आएगा बच्चों, दिस इज 6, so mean is given 8, 8 into 6 is equal to x1 plus x2 plus x3 plus x4 plus x5 plus x6 आया, ठीक है, तो इट इज x1 plus x2 plus x3 plus x4 plus x5 plus x6 is equal to 48 आएगा। इसके बाद में क्या दिया है, if each observation is multiplied by 3, तो इसका टोटल निकालते हैं, b निकालेंगे, if each observation is multiplied by 8, so new sorry it is multiplied by 3, तो हम लोग क्या करेंगे, ईच ऑब्जर्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 3x1 प्लस 3x2 प्लस 3x3 प्लस 3x4 प्लस 3x5 प्लस 3x6, तो ये इसका जो टोटल आ रहा है बच्चों, इट विल गेट मल्टीप्लाइड बाय 3, 48 into 3, ठीक है, तो देखिए बच्चों, this is equal to, if we multiply this, it comes 144, so summation a is equal to the summation of x, so therefore again we can calculate new mean by right here, new mean is equal to
समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन एन। तो ये न्यू टोटल बच्चों ये है, इट इज 144 अपॉन 6 ऑब्जर्वेशंस है, ठीक है। तो मीन, न्यू मीन I can say that is equal to 6 बंदा 6 to the 12, 6 4 the 20, it is 20। तो ये हमारा न्यू मीन आ गया। अभी हमको क्या दिया है देखिए, वेरिएंस कितना दिया है, देखिए बच्चों यहाँ 4 दिया है वेरिएंस, सॉरी स्टैंडर्ड डिविएशन। तो वेरिएंस का स्क्वायर रूट निकालने के बाद स्टैंडर्ड डिविएशन आता है, इसका मतलब वेरिएंस इज इक्वल टू 4 स्क्वायर, क्योंकि वेरिएंस का स्क्वायर अगर स्क्वायर रूट निकालते हैं तो इट इज स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन 4 है, इसका मतलब वेरिएंस हो जाएगा 4 स्क्वायर। तो इसी वेरिएंस का फार्मूला हमें मालूम है दोस्तों, समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस summation of xi upon n whole square is equal to 16 whole square. Summation of xi square upon n minus, देखिए बच्चों हमने मीन निकाला है, तो यहां से हम लोग ये निकाल ले रहे बच्चों, ये यूजिंग दिस, ये टोटल का स्क्वायर, इसका मीन जो लेंगे हम लोग ये लेंगे बच्चों, व्हाट इज मीन 8, 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 आएगा। तो summation of xi square upon n is equal to 16 plus 64, this is equal to 80 आएगा। अब यहाँ पर n का मतलब है बच्चों 6 है, या 6 ले सकते हैं। summation of xi square is equal to 80 into 6, summation of xi square is equal to 480 आएगा। We can call this as equation number 1। देखिए ये तो ये हमारा ये हो गया वोल्ड है, ये समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर, ये वोल्ड है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे न्यू समेशन ऑफ एक्स, यू कैन से दैट न्यू, इसको एक्स बोलेंगे इंस्टेड ऑफ एक्स आई, एक्स एक्स स्क्वायर बोलेंगे हम लोग। तो ये क्या आ जाएगा न्यू, ये नहीं है 3x1 स्क्वायर plus 3x2 whole square plus 3x3 whole square plus 3x4 whole square plus 3x5 whole square plus 3x6 whole square, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा है, if each observation is multiplied by 3, तो ये हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। सो व्हाट विल बी दिस बच्चों, ये 3 का स्क्वायर है बच्चों, तो ये 3 का स्क्वायर हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। 3 का स्क्वायर 9, so we can say that x1 square plus x2 square plus x3 square plus x4 square plus x5 square plus x6 square, 9 into summation of xi square, and we have calculated that it is summation of xi square, means here summation of summation of squares of whole numbers, we can say that before multiplying by 3, so 9 into 480, तो ये 480 ने कैलकुलेट किया। देखिए बच्चों हम लोग इसको 9 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इट कम्स
432 means 4320 आएगा. This is new summation of x square. और xi भी बोल सकते हैं, xj भी बोल सकते हैं, x dash बोलेंगे I square. Okay. So let us calculate now new variance. New variance is equal to summation of xi dash square upon n minus इसका मीन जो नया मीन निकाला है, न्यू मीन, एक्स डैश भी बोल सकते हैं इसको, एक्स डैश. तो ये हमारा 4320 अपॉन 6 माइनस 24 स्क्वायर, 4320 अपॉन 6 माइनस 576. 576 आएगा बच्चों. This is 4320 या फिर इसको डिवाइड कर देंगे 6 में. It is 720 minus 576, that is equal to 142. ये वेरिएंस आ रहा है. That means new variance sigma square. So new standard deviation is equal to under square root of sigma square, that is 144. Create 12. एग्जाम्पल बच्चों, पहले क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया है. Given that x bar is the mean and rho square is the variance of n observations x1, x2, xn, prove that the mean and variance of ax1, ax2, ax3 dash axn are ax bar and a square rho square, you can say that. So what is given here, bachcho? X bar is equal to x1 plus x2 plus x3 plus x4 plus dash dash plus xn upon n आएगा, बराबर. So this is mean है, ठीक है, mean x. So this is equal to, we can say that x bar बोल सकते हैं, mean x bar. It is x bar is given. Now new mean निकालते हैं. What is the mean? The observation इसका new mean है, इसका mean है. I can write mean of ये x1 comma ये x2 comma ये x3 comma dash 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 comma ये x1. ये क्या आएगा बच्चों? ये x1 प्लस ये x2 प्लस ये x3 प्लस dash dash प्लस ये xn comma n. तो न्यूमरेटर में ये कॉमन है, x1 plus x2 plus x3 plus dash dash plus xn. This is equal to ये. अब this is nothing but क्या है बच्चों? ये जो है, this is ये. So you can say that ये x bar. So ये हमारा पार्ट प्रूव हो गया, ये आ गया. अभी सेकंड हमको क्या प्रूव करना है कि variance of this observation is a square rho square, ये प्रूव करना है, ठीक है. तो हम लोग क्या करेंगे, variance of ये x1 comma ये x2
ax3 dash dash comma ax that is equal to, तो इसका फार्मूला है बच्चों समेशन ऑफ ax1 माइनस ax बार होल स्क्वायर अपॉन एन, ये एक्स आई है बच्चों, ये एक्स आई माइनस, तो देखिए बच्चों इसको अगर हम लोग लिखेंगे ऐसा हो जाएगा, ओके समेशन इट इज नथिंग बट क्या हो जाएगा, ये x1 माइनस ये x बार होल स्क्वायर प्लस ये x2 प्लस ये x बार होल स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस ये xn प्लस ये x बार होल स्क्वायर और इट इज डिवाइडेड बाय n। देखिए बच्चों हर ब्रैकेट में से ये कॉमन निकालेंगे, यहाँ ये कॉमन है, ए कॉमन है, और इसको बाहर निकालेंगे ब्रैकेट के तो ये स्क्वायर हो जाएगा, तो ये स्क्वायर हम लोग कॉमन, यहां से ये स्क्वायर कॉमन, ए स्क्वायर कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या रहेगा x1 माइनस एक्स बार होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस एक्स बार होल स्क्वायर प्लस डैश डैश प्लस xn माइनस एक्स बार होल स्क्वायर divided by n। So this is nothing but a square into, देखिए ये बच्चों what is this, this is nothing but a rho square, so we can say that variance of this ax1 comma ax2 comma ax3 comma a dash is a square rho square।